السلام علیکم، میں ہوں معاذ اور ناول کے جہاں میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے اسرا جو کہ فاتح کی وائف ہے، اس کا بھائی ان کے گھر آتا ہے اور اس کی بہن کی آرٹ گیلری کی جو ہے وہ نمائش ہونے والی ہوتی ہے، تو اس کے وہ کارڈز چھپوا کر لاتا ہے اور ناشتہ کرتے کرتے وہ فاتح سے اچانک یہ پوچھتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے میں نے سنا ہے کہ آپ چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ رہے، کیونکہ اسرا یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر سب چیزیں چھوڑ کے جو ہے وہ امریکہ جا بسے اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس کا بھائی جو ہے وہ اس کی سیٹ کو سنبھالے اور نیا پرائم منسٹر بنے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ کے ایل کے ایک دوسرے رہائشی علاقے میں آؤ تو یہاں تنگو کامل کے گھر بھی صبح ہو چکی تھی۔ بارش یہاں بھی تڑاتڑ برسے جا رہی تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں سے بھیگتا لان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مسز شیلا صوفے پہ بیٹھی دل گرفتگی سے سامنے بیٹھی تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسی تمہاری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ تالیہ نے گلابی متروم آنکھیں اٹھائیں۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھی، سیاہ بال کس کے باندھ رکھے تھے اور چہرے پہ اداسی تھی۔ سر نے جو پیسے مجھے دیے تھے اور جو اس آدمی نے دیے تھے وہ میں نے اپنے والد کو بھجوائے۔ مجھے لگا تھا وہ خوش ہوں گے، مگر ان کو لگتا ہے کہ میں غلط کاموں میں پڑ گئی ہوں، اس لیے انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا اور مجھے واپس بلا لیا ہے۔ آنکھیں بھیگنے لگیں، مگر میں غلط کاموں میں تو نہیں پڑی تھی نا میم۔ تالیہ نے تو وہی کیا جو مسٹر کامل نے کہا تھا۔ تالیہ نے تو چوری نہیں کی تھی نا میم۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور گلابی گال پہ لڑک گیا۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں تالیہ۔ شیلا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میری ماں نے بھی میری بہن کے ساتھ یہ کیا تھا۔ ہمیں ایشیائی عورتیں، میں تو اس وجہ سے ماں کو کبھی معاف نہیں کر سکی۔ تالیہ چونکی، مگر آپ کو تو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی نا۔ آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو ایک تاج دیا تھا جو آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ کون سی محبت، ستیلی ماں تھی وہ ہماری۔ اس کا دیا زیور بھی پہننے کو دل نہیں چاہتا میرا۔ قیمتی نہ ہوتے تو سنبھال نہ رکھتے۔ انہوں نے نخود سے سر جھٹکا تو تالیہ کا منہ کھل گیا۔ ایک بے بس سی نظر اوپر ڈالی جہاں اسٹڈی کے لاکر میں اس تاج کو ان پہ رحم کھا کے چھوڑ آئی تھی۔ اف کاش خواہ انسانیت کے چکر میں نہ پڑی ہوتی۔ ہائے وہ کتنا پیارا اور قیمتی تھا، کاش موٹی کی بات سن لی ہوتی۔ میں چلتی ہوں میم، اور اگر آپ لوگ کبھی لاہور آئیں تو میرے پاس ضرور آئیے گا۔ ہم لاہور کے لوگ بہت پیارے ہوتے ہیں، کھلے دل سے، مہمان نواز اور کھاتے پیتے سے۔ وہ بادل نخواستہ کہتی چھتری اٹھائے اٹھی تو وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ انشاءاللہ، کیوں نہیں؟ وہ مسکرا کے بولی، پھر پرس کھولا، اپنی باقی تنخواہ لیتی جاؤ۔ نہیں میم، سر نے اتنا کچھ دے دیا ہے، میں مزید کچھ نہیں لوں گی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی اور سختی سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ انہوں نے زبردستی تھمانے چاہے تو تالیہ نے ہاتھ پیچھے کر لی۔ نہیں میم، یہ میں نہیں لوں گی۔ اچھا، میں کچھ اور کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ وہ خلوص سے پوچھ رہی تھی۔ تالیہ نے بدقت اپنے خفا جذبات کو چہرے پہ آنے سے روکا۔ ماں کے زیور کے قصے کیوں سنائے تھے آخر پھر؟ تالیہ تم نے وہ کیوں چھوڑ دیا؟ بس دعا میں یاد رکھیے گا۔ کیوں نہیں تالیہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اتنی اچھی، صاف اور سچے دل کے مالک جو ہو۔ باہر ایک دم زور سے بجلی کڑکی، بارش کی بچھاڑ تیز ہوئی۔ تالیہ کی آنکھوں میں سایہ سا لہرایا، سیاہ تاریک مایوس سا سایہ۔ دل ایسے ڈوبا جیسے نیلے سمندر میں ٹوٹا ہوا جہاز ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا انجام ایسا نہیں ہونا چاہیے مسز شیلا، مگر خیر۔ اسے سر جھٹک دیا، ہمیشہ کی طرح دل کو بھی جھٹک دیا۔ مسز شیلا اب پرس واپس رکھ کے اسے وقت رخصت کی دعائیں دے رہی تھیں۔ بارش ویسے ہی برس رہی تھی۔ وہ گھر آئی تو دروازہ کھلا تھا۔ داتن پھیل کے لاؤنج کے مرکزی صوفے پہ برا جمع تھی۔ ٹی وی چلا ہوا تھا اور وہ آلو کے گرما گرم چپس کھا رہی تھی۔ تالیہ نے سامنے آتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اتنے سارے چپس! ایک مشکوک نظر اوپن کچن کاؤنٹر پر ڈالی، اور اتنے سارے جھوٹے برتن ظاہر کر رہے تھے کہ تم کب سے بیٹھی بس کھا ہی رہی ہو۔ یقیناً رات دیر تک جاگتی رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے سامنے پھیلے بکھراوے کو دیکھنے لگی۔ کاغذات، لیپ ٹاپ، کتابیں، یہ کام تو تم نے صبح اٹھ کے میرے جانے کے بعد شروع کیا ہوگا۔ پھر رات بھر جاگ کے کمپیوٹر پہ کیا کرتی رہی تھی؟ مجھے یہ سوچنے دو۔
ताले ने उंगली से गाल पर दस्तक दी और ऊपर छत को देखते हुए सोचा, जब दातन सारी रात कंप्यूटर पर बैठे और इतना खाए और सुबह उसके चेहरे पे ये पछतावे भरी खामोशी हो, तो उसका एक ही मतलब होता है कि तुम रात भर गूगल पे दुबले होने के तरीके देखती रही थी। दातिन, जो नाक पे ऐनक जमाए स्क्रीन को देख रही थी, इस बात पे नजर उठा के उसे घूरा। और तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? तुम्हारी आंखों के गिर्द लकीरों में लिखा है, बूढ़ी औरत, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने सुबह मेरे लैपटॉप की हिस्ट्री चेक की होगी। जाहिर है मैंने हिस्ट्री चेक की थी। वो खिलखिला के हंस दी और उसके साथ सोफे पे आ बैठी। पैरों की कैंची बना के मेज पे रख लिए। इतना हल्का ना हुआ करो दातिन, तुम अब पतली नहीं हो सकती। पतला होने के लिए उम्र की शर्त नहीं है। इंसान किसी भी उम्र में दुबला हो सकता है। इंसान हो सकता है, वाला मुर्गियां नहीं। वो कह के जोर से हंसी। वैसे देखा है तुमने कभी कहीं मुर्गी को डाइटिंग करते, सूप और उबली सब्जियां खाते? नहीं ना। दातिन ने गफकी से नाक सिकोड़ी और उसे दर्जीदा नजर से देखा। बहुत खुश नजर आ रही हो, खैर है? हाँ ना, तंगू कामिल के घर से इस्तीफा दे आई हूँ। बकाया तनख्वाह भी उनको सदका कराए हैं, जल्द उनको इसकी जरूरत पड़ेगी। चिट अफसोस से सर हिलाया। अपनी इंसानियत का नतीजा गोल कर गई। खैर, अब हम फातिह रामज़िल पे काम करना शुरू करेंगे। मैं फ्रेश होके आती हूँ और प्लान बताती हूँ। क्या कि उससे पैर नीचे उतारे और झुक के जूते खोलने लगी, जो कि ताले के बाद जुड़े में बंधे थे। गर्दन के पुश पे गोल से जलने का निशान दिखाई दे रहा था। दातिन उसको देखे गई, फिर मोबाइल निकाला और हाथ ऊंचा करके इस निशान की तस्वीर ली। क्या कर रही हो? मेरी जैसी पुतली तुम अगली 10 जिंदगी में भी नहीं हो सकती। तालिया जूते उठाते सीधी हुई, उसे चिढ़ाने को बोली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। दातिन ने कुछ नहीं कहा, बस स्क्रीन को जूम करके इस निशान को गौर से देखने लगी। इसके सियाह मोटी मोटी आंखों में अचंभा सा था। उसने तस्वीर मोबाइल से लैपटॉप में डाली, उसका प्रिंट आउट निकाला और फिर उस कागज को तह करके अपने पर्स में रख लिया। वो फ्रेश होकर आई तो दातिन इस तस्वीर लेने का हर निशान मिटा चुकी। तालिया ने गीले सियाह बाल तौलिए में लपेट रखे थे और पैरों में स्लीपर्स पहन रखे थे। वो सामने वाले सोफे पे आलती पालती करके बैठी और बोली, तो हम क्या जानते हैं फातिह रामज़िल के बारे में? फातिह रामज़िल जिसके नाम के साथ दान लगता है। और तुम जानती हो तालिया कि दान मलेशिया में उन लोगों के नामों के साथ लगता है जो ऊपर से शाही खानदान में से थे, मगर फिर किसी एक ने किसी आम आदमी से शादी कर ली तो उनकी नस्ल में मिलावट हो गई। केल की सड़क पे वो सियाह लंबी कार दौड़ रही थी और पिछली सीट पे बैठा फातिह खिड़की के बाहर देख रहा था। आंखें पुरसोच अंदाज में छोटी कर रखी थी और मुसलसल थोड़े को अंगूठे से रगड़ रहा था। फ्रंट सीट पे ताबेदारी से बैठा एडम गाहे बगाए आईने में अपने मालिक को देख लेता था, आरजी मालिक को। उससे सोच की तस्हीह की। फातिह कम उम्र में अपने वालिदैन के साथ अमेरिका चला गया था। उसको वहाँ की शहरियत भी मिल गई, मगर वो कभी मुल्क से कटा नहीं। छुट्टियों में, त्योहारों पे वो केल आ जाता था। लोग कहते हैं वो वहाँ कॉलेज में काफी मकबूल था। यूं करो, कार मोड़ लो। खिड़की से नजर हटाए बगैर फातिह ने ड्राइवर को मुखातिब किया तो वो चौंका। सर, हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं। इसके वक्त का एक एक मिनट डायरी में लिखा होता था। ऐसे में ये तब्दीली शम्स के घर की तरफ ले चलो। मगर सर, क्या आज आप सेशन अटेंड नहीं करेंगे? ड्राइवर ने फिक्रमंदी से पूछा। रास्ते से फूल भी लेते चलो, शम्स बीमार है कुछ अरसे से। ओके सर, मैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर दूं कि आप सेशन अटेंड नहीं करेंगे। एडम ने जल्दी से फोन निकाला। सेक्रेटरी दूसरी कार में आ रहा था। गुलाम मत लेना, शम को उससे एलर्जी है। कुछ और लेना। वो खिड़की से बाहर दूर नजर आती ऊंची इमारतों पर नजरें जमाए बोला था। एडम गहरी सांस लेकर रह गया। इतना तो वो पिछले 30 घंटों में समझ चुका था कि उसका आर्जी मालिक बात का सीधा जवाब नहीं देता। फातिह ने 2 दफ़ा स्टेट अटॉर्नी का इलेक्शन लड़ा और दोनों दफ़ा रियासत के लोगों ने उसे मुंतखब करके ऑफिस में पहुंचाया। वो अमेरिका में काफ़ी मकबूल था। इसका रिकॉर्ड शानदार था। ईमानदार आदमी, सच्चा और खरा। मगर वो सब छोड़ के मलेशिया वापस आया और यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। कार अब भी सड़क पर दौड़ रही थी और वो हनूज बाहर देखते हुए कुछ सोचे जा रहा था। ड्राइवर और बॉडीमैन अपने अपने फोन्स पे लगे थे। सेक्रेटरी को इतला, शम्स साहब के ऑफिस में इतला, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी इंतजाम, अफरा तफरी सी मच गई थी। वो 2 दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुआ है और इन 10 सालों में उसने अपने हल्के के लिए बहुत कुछ किया है। उसने इलाके को साफ किया, वहाँ बेहतरीन स्कूल्स बनवाए, बेहतरीन अस्पतालों का निज़ाम लाया, सिक्योरिटी बेहतर की। लोग उससे खुश हैं। अगर कोई नहीं खुश तो उसकी अपनी पार्टी है। कार अब एक फूलों की दुकान के सामने रुकी हुई थी। वो अभी तक बाहर देखते हुए गहरी सोच में गुम था। जेब में रखा मोबाइल वक्फे वक्फे से थरथराता था, मगर वो तो मुतवज्जो नहीं था। वो कुछ सोच रहा था।
اس کی صاف گوئی نے جہاں بہت سے دوستوں کو ناراض کیا، وہاں حد سے زیادہ بے نیازی امیر لابیسٹ کو اس سے دور کر کے اشر کے قریب لے گئی۔ اشر اس کی بیوی کا بھائی ہے، میٹھی چھری جیسا، ہر وقت ہنستا مسکراتا ہوا، ایک نمبر کا دوغلا اور ایمبیشن انسان۔ اشر نے اپنے آبن کے نام پہ لوگوں سے قرضے لیے، فیورز مانگے۔ یہ نہیں کہ فاتح ان کو ادا کرے گا، بلکہ یہ کہ اس طرح میں آپ کو فاتح سے قریب کر دوں گا۔ اشر امیر ہوتا گیا اور فاتح کی جمع پونجی کم ہوتی گئی۔ سیاست بہت مہنگا شوق ہے اور اس کی بیوی کا کام بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔ کچھ عرصے پہلے اس کی کچھ دکانیں جل گئیں اور وہ پھر شیئرز ڈوب گئے۔ ان دو حادثات نے اس کی مالی حالت کو شدید دھچکا لگایا ہے۔ اوپر سے لگژری لائف سٹائل کا ملمہ تو ہے، مگر اندر سے ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ لیکن دان فاتح کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کار پھر سے چل پڑی تھی۔ پھول ایڈم نے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیے تھے اور ان کی خوشبو نے ساری کار کو مہکا دیا تھا، ایسی دلفریب خوشبو کہ طبیعت خوش ہو جائے۔ ایڈم کا موڈ بھی ایک دم کافی خوش ہو گیا۔ وہ ایک خواب میں جی رہا ہے تالیہ، ایک آئیڈیلزم میں۔ لوگ کہتے ہیں ایسے سیاست نہیں آتی، اسے عیاریاں نہیں آتی۔ وہ عوام کے ووٹ کے بھروسے پہ وزیر اعظم بننے کے لیے پر یقین اور پر امید ہے، مگر اسے اتنا بھی احساس نہیں کہ ملیشیا میں جمہور کی حمایت کافی نہیں، امیر دوست زیادہ ضروری ہیں۔ گاڑیوں کا قافلہ ایک بنگلے کے باہر پہنچا تو خود کار گیٹ کھول کے دیواروں میں گھستا گیا۔ کار طویل ڈرائیو وے پہ آگے بڑھتی آئی۔ فاتح ایک سادہ آدمی ہے، مغرور بھی ہے، مگر ہر ایک پہ اعتبار کر لیتا ہے، سب کو اپنے جیسے سچا سمجھتا ہے۔ اس کے دوست اشر کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ فاتح رامزل اپنے خواب سے دستبردار ہوتا ہے یا نہیں۔ ایڈم جھٹ کار سے نکلا اور فاتح کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ فاتح نے دروازہ خود ہی کھولا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے باہر نکلا۔ باہر نکل کے فاتح رامزل نے گردن اٹھا کے اس اونچے گھر کو دیکھا۔ بارش اب تھم چکی تھی، سیاہ بادل غائب ہو رہے تھے۔ تم لوگ یہیں رکو، اس نے بے نیازی سے تمام ملازموں کو ہاتھ سے اشارہ کیا جو ساتھ آ رہے تھے۔ سب رک گئے اور سمجھ کے چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ فاتح گھر کے برآمدے کی طرف بڑھا جہاں شمس کے ملازم اس کو اندر لے جانے کے لیے مستعد کھڑے تھے۔ پھر وہ ٹھہرا اور گردن موڑ کے سوالیہ نظروں سے ایڈم کو دیکھا جو ساتھ چلا آ رہا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہیں رکو۔ سوری سر، مگر آپ کو صبح سے فلو کی شکایت ہے۔ آپ کو بار بار ٹشو کی ضرورت ہوگی جو میں ساتھ لایا ہوں، اور آپ کو کسی دوسرے کے ملازم کے ٹشوز پہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہوگا۔ فاتح نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک آبرو اٹھائی۔ تم مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں سر، میں نے آج صبح سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سچائی اور ایمانداری سے کام کروں گا، کیونکہ میں آپ کے ملازموں میں وہ واحد شخص ہوں جس کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ سادگی سے مسکرائے۔ واقعی؟ تمام ملازمین، سیکرٹری سب ایڈم کو گھور رہے تھے، مگر وہ نڈر سا بولے جا رہا تھا۔ سو میری نوکری ویسے بھی چند دن میں ختم ہو جائے گی اور آپ کبھی کسی کی سفارش نہیں کرتے، سو مجھے آپ سے کچھ نہیں ملنے والا۔ کل رات تک میرے دل میں لالچ تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ میں نے آپ کی مخالف امیدوار کو ووٹ دیا تھا سر، حکمران پارٹی کو، اپنی موجودہ وزیر اعظم کو، مگر اب مجھے خوف نہیں ہے سر۔ سچ بولنے والے انسانوں کو ناراضی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس سے سوری، مگر میں آپ کو اکیلے اندر نہیں جانے دے سکتا جبکہ آپ کو فلو ہے۔ فاتح ہلکا سا مسکرایا اور آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ تم واقعی مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور آگے بڑھ گیا۔ ایڈم مستعد سے پیچھے لپکا۔ سیکرٹری نے تادیبی انداز میں پکارا، ڈرائیور نے گھورا، مگر چونکہ فاتح نے منع نہیں کیا اس لیے وہ رکا نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ایک خوبصورتی سے سجائے گئے شاہانہ طرز کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اونچی کھڑکیاں، سنہرے پردے اور سفید مخملی صوفے جیسے کراچی کا کوئی بنگلو ہو۔ شمس صاحب چینی نقوش کے حامل ادھیڑ عمر انسان تھے۔ ان کے سامنے فاتح رامزل برا جمان تھا، ہاتھ صوفے کی پشت پہ پھیلائے، ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ ایڈم پیچھے کھڑا تھا، ہاتھ میں ٹشو کا پیکٹ تھا۔ تمہیں کچھ پریشان کر رہا ہے فاتح؟ شمس صاحب تفکر سے اس کا چہرہ دیکھ کے بولے تھے۔ میں ایک دوراہے پہ کھڑا ہوں، کراس روڈز پہ، سامنے 3 سڑکیں ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کون سی ہو۔ باغ کے اختتام پہ وہ جھکا اور میز پہ رکھے ٹشو باکس سے 3 ٹشو کھینچے۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنا ذہن کلیئر کر سکوں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے ہر برے وقت مجھے یاد رکھا ہے اور مجھ پہ بھروسہ کیا ہے۔ میں کسی برے وقت میں نہیں ہوں شمس۔ تہہ شدہ ٹشو سے ناک رگڑتے اس نے کندھے ذرا سے چکائے تھے۔ ایڈم نے بے چینی سے پہلو بدلا، ٹشو کا پیکٹ پکڑا، ہاتھ پہلو میں ڈھیلا سا گر گیا۔ اگر مجھ پہ بھروسہ کیا ہے تو میری رائے کو تحمل سے سنو۔ تم اچھے دوست اچھے وقت میں بھی نہیں ہو فاتح، لوگ تم سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ ایس چاہتا ہے میں چیئرمین شپ کے الیکشن سے دستبردار ہو جاؤں، اسرا چاہتی ہے ہم امریکہ چلے جائیں۔ یہ سراسر ظلم ہے۔
शम्स साहब के चेहरे पे गुस्सा नजर आने लगा। चेयरमैन बनने का अगर ये दुरुस्त वक्त नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन मुल्क छोड़ना, अपनी सियासत छोड़ के किसी लॉन्ज लिजर्ड की तरह रिटायरमेंट गुजारना, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। फातिह ने इसी सादगी से दूसरा टिश्यू तय करते हुए पूछा, तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? सियासत दरमियानी रास्ते का नाम है, मुफाहमत का, बातचीत से मसाइल हल करने का। वो समझदारी से कह रहे थे, वो टिश्यू मुट्ठी में दबाए आंखें छोटी करके उनको गौर से देखता रहा। तुम कुछ अपनी मनवाओ, कुछ उसकी मांग। चेयरमैनशिप छोड़ दो, मगर किसी एक रियासत की हुकूमत मांग लो। ऐश वजीर आजम बन के एक रियासत तुम्हारे हवाले कर दे, तुम उस शर्त पे ऐसे डील कर लो। वाकई, फातिह ने समझते हुए सर हिलाया, ये बेहतरीन ऑप्शन है। 5 साल तुम उस रियासत के हाकिम बन के खुद को मजीद मजबूत करो। 5 साल बाद तुम चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ो और वजीर आजम बनने की कोशिश करो। सही, मैं इस बारे में सोचूंगा। उसी सर को आहिस्ता से हिलाया और कलाई पे बंदी घड़ी देखी, फिर टांग से टांग हटाई और उठ खड़ा हुआ। शम्स साहब भी साथ ही उठे। अब इजाजत, असर की नीलामी पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, कोई इवेंट हो रहा है मिसेस असरा का? अल्लाह बरकत दे। हाँ, ऐश अरेंज करवा रहा है। वो मुसाफा करके आगे बढ़ गया। ड्राइंग रूम से निकल कर वो लॉबी तक आए तो दरमियानी मेज पे फूलों की टोकरी रखी थी। एडम ने गुजरते हुए यूं ही नजर घुमाई तो चौंका। टोकरी में एक सुर्ख और गुलाबी कार्ड का कोना झलक रहा था। जहन में झमाका हुआ। लेट नाइट कार्ड्स आए थे। सुबह सुबह सबसे पहले इधर ही आया। किसी ख्वाब किसी कैफियत में एडम सीधा हुआ, फिर आगे देखा। फातिह मोबाइल पे बटन दबाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। एडम शिल से पीछे आया। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था, मगर उसे खुद पे काबू पाकर कार में बैठना था। गेट पे खड़े होकर शम्स साहब ने फातिह की कार को अलविदाई हाथ हिलाया और जब तमाम कारें नज़रों से ओझल हो गईं तो उन्होंने मोबाइल निकाला और स्पीड डायल पे एक नंबर मिला के फ़ोन कान से लगाया। फिर एक हाथ कमर पर जमाए घंटी सुनने लगे। ऐश। राब्ता मिलने पे उन्होंने गहरी सांसें। तुमने ठीक कहा था, वो सबसे पहले मेरे पास आया। हाँ, बेफिक्र रहो, मैंने वही कहा है जो तुमने बोला था, एक रियासत की हाकमियत और बस। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो वो सोचते हुए बोले, कुछ कह नहीं सकता, मगर वो दस्तबरदारी के लिए नीम रजामंद लगता है। नहीं, उसको मुझ पे शक नहीं होगा, वो मुझ पे एतबार करता है। वो बोलते हुए अंदर की तरफ मुड़ गए थे। आवाज़ हल्की होती जा रही थी। चंद किलोमीटर दूर अपने ऑफिस फ्लोर के कॉर्नर ऑफिस में अशर पावर सेट संभाले बैठा था। टेक लगाए वो फ़ोन कान पर जमाए मुस्कुरा के सुन रहा था। गुड, मुझे मालूम था कि वो कभी भी अमेरिका नहीं जाएगा। हमने उसको मौत दिखा के बुखार पे राज़ी करना है। वो मुझसे जल्द ही एक रियासत की बात करेगा और मैं उसको मान रखूँगा। वो समझेगा सारा आइडिया उसी का है। कॉल बंद करके उसने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को बुलाया। जैसे ही वो अंदर आया उसने देखा कि अशर संजीदा स्पॉट सा बैठा है। चेहरे पे बेरहमी भरी सख्ती और माथे पे बल है। अरब अमीरजादे का बंदोबस्त कर लिया है? उसने सर्द आवाज़ में पूछा। यस सर, सारे कागजात पक्के हैं। मिसेस असरा को शक भी नहीं होगा कि जिस अमीर अरब से वो मिलने जा रही हैं वो एक अदाकार है। और पेंटिंग उसी शेख के मुलाजिम से उनके घर से उठवाई है, लेकिन असल शेख साहब उसको मिस नहीं करेंगे, क्योंकि चंद साल कबल जब जख्मी हिरन की पेंटिंग चोरी हुई थी तो चोर हमेशा की तरह एक नकली पेंटिंग छोड़ गए थे। बहुत महारत से बनाई गई है वो। शेख साहब ने गुस्से से उसको स्टोर में फेंका दिया था। और एक्सपर्ट, वो दो एक्सपर्ट्स को बंदोबस्त कर लिया है जो पेंटिंग की तस्दीक करेंगे और मिसेस असरा को बताएंगे कि वो असली हैं। मिसेस असरा के अपने एक्सपर्ट को ऐन मौके पे मुल्क से भेजने का बंदोबस्त भी कर लिया है। मिसेस असरा गैलरी ओनर हैं, एक्सपर्ट नहीं। वो धोखा खा जाएंगी। गुड, अशर पहली दफ़ा मुस्कुराए। नीलामी पे जब पेंटिंग महंगे दामों बिक जाएगी तो ऐन वक्त पे बाहर से आया एक मशहूर एक्सपर्ट उसका मुआयना करेगा और मीडिया के सामने आश्कार करेगा कि मिसेस असरा जाली पेंटिंग चैरिटी के नाम पे बेच रही थी। फातिह भाई को जिम्मेदारी कबूल करके पार्लियामेंट के रुकने से इस्तीफा देना पड़ेगा। बहुत बदनामी होगी सर। मैनेजर के अल्फाज में अफसोस था। फिर वो हिचकिचाए, मगर सर आप मिसेस असरा के भाई हैं। गलत, स्पॉट लहजे में बात काटी। मैं सिर्फ मलेशिया की वजारत उज़्मा का उम्मीदवार हूँ। ये तख्त का मामला है और तख्त के लिए बेटे अपने बाप को और बाप बेटों को मार दिया करते हैं। हम मलेशिया का तख्त एक ऐसे शख्स के हाथ में नहीं दे सकते जो 10-15 साल पहले मलेशिया आया था। इस मुल्क में सारी उम्र हमने गुजारी है। इसको एशियन टाइगर बनते हमने देखा है। इसके वारिस हम ही हैं। और सख्ती से हाथ झुलाया, गोया जाने का इशारा किया। जी सर। मैनेजर ने जल्दी से बात ख़त्म की और उठ खड़ा हुआ।
कुआलालंपुर पे छाए सुरमई बादल को सूरज ने दोनों हाथों से दाएं बाएं धकेल कर अपने झांकने का रास्ता बना लिया था। बारिश खत्म हो गई थी और सुनहरी दिन निकल आया था। ऐसे में शहर का एक मशहूर और मारूफ कन्वेंशन सेंटर, जिसको पुत्र ओल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता था, अपनी पूरी आबोताब से खड़ा था। एक कौन इमारत जो सामने से शीशों से ढकी थी और उसके अंदर बड़े बड़े हॉल बने थे जहां कन्वेंशन और सेमिनार मुनक्किद होते थे। एक तरफ शॉपिंग मॉल था और ऊपर ऑफिस बिल्डिंग। बारिसन नेशनल का हेड ऑफिस इसी तकोन इमारत के अंदर वाक़ था और इस वक्त फातिह रामजल ऑफिस फ्लोर की लॉबी में तेज तेज चलता जा रहा था। 4-5 अफराद भी उसकी मैयत में कदम उठा रहे थे। एडम बिल्कुल खामोश था। जहन के पर्दे पे बार बार टोकरी से झलकता कार्ड आता था। फातिह बिन रामजल से चंद कदम आगे था। सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड की मौजूदगी के बाद उसके करीब नहीं जा पा रहा था और फिर रास्ते में उसे देख के रुक जाते लोग, जिनको मुस्कुरा के हाथ माथे पे ले जाकर सलाम कहता आगे बढ़ता चला जा रहा था। सर, मुझे आपसे बात करनी है। एडम ने पीछे से उसे पुकारा, मगर फातिह ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा। अलबत्ता पॉलिटिकल सेक्रेटरी एड़ियों पे घुमा और गुस्से से उससे घुरा। एडम, तुम मुझसे मिलो कुछ देर तक। मुझे लगता है अब्दुल्ला ने तुम्हें मैनर्स सिखाए बगैर भेज दिया। एडम खामोश हो गया। फातिह ऑफिस में चला गया तो वो बाहर बैठ गया। जैसे ही पॉलिटिकल सेक्रेटरी किसी काम से बाहर गया, वो तेजी से दस्तक देकर ऑफिस में दाखिल हुआ। अंडर ब्लाइंड्स खुले थे। रोशनी में कमरा नहाया हुआ लगता था। फातिह ने कोट उतार के स्टैंड पर लटका दिया था और खुद पावर चेयर पे बैठा, ऐनक लगाए चंद कागजात देख रहा था। आहट पे भी मुतवज्जह ना हो। सर, एडम संजीदगी से कहता सामने आया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मोहताज सा कनखियों से दरवाजे को भी देख लेता कि कहीं सेक्रेटरी वापस ना आ जाए। क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? मैं नहीं जानता लोग सवाल पूछने की इजाज़त क्यों तलब करते हैं, जबकि उन्हें जवाब में सिर्फ हाँ ही सुनना होता है और इजाज़त की उन्हें परवाह नहीं होती। वो अपनी डायरी के सफ़े पलटाते हुए मसरूफ़ अंदाज में बोला था। उसे बहुत से काम करने थे। वो मुल्क के मसरूफ़ तरीन लोगों में से था। एडम का हलक सूखने लगा। सर, आप शम्स साहब के पास गए और उनसे अशर साहब के बारे में मशवरा तलब किया। वो जल्दी जल्दी कहने लगा। फातिह अब सेल फोन उठाए कुछ चीज़ डायरी के सफ़े से टैली कर रहा था। उन्होंने जाहिर किया कि वो आपके दोस्त हैं और ये कि उन्हें मिसेज असरा के इवेंट के बारे में मालूम नहीं, मगर अशर साहब ने सुबह कहा था कि वो कार्ड सबसे पहले आपकी तरफ लाएं। मगर एक कार्ड शम्स साहब के घर भी पड़ा था। शम्स साहब का घर अशर साहब के घर के करीब है। अगर वो पहले उनको कार्ड देकर आए हैं तो यकीनन दोनों की दोस्ती गहरी और फॉर्मेलिटी से पाक है। मगर एडम को लगा वो सुन नहीं रहा। उसकी टांगें होले होले कांपने लगी। मुझे लगता है सर, आप गलत आदमी पे भरोसा करके उससे मशवरा लेकर आए। वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। फातिह के चलते हाथ रुक गए। उसने नजर उठा के एडम को देखा और फिर आंखों को पुरसोच अंदाज में छोटा किया। तुम्हारा नाम क्या है? एडम की चलती जबान को ब्रेक लगाए। एडम बिन मोहम्मद। एडम, राइट। उसे सर हिलाया, फिर एडम पे ठंडी नजरें जमाए, पीछे को टेक लगाई और ऐनक उतारी। एडम, किस गांव में एक आदमी का कत्ल हो गया तो लोगों ने शहर से एक माहिर सराग रसा को बुलाया। उसने मौके वारदात का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि मरने वाले का किसी शादीशुदा औरत से अफेयर था। औरत कौन थी? कोई नहीं जानता था। सुराग रसा सीधा चर्च गया और पादरी के साथ एतराफी कमरे में बैठ गया। हमारे मसीही भाई जब गुनाह करते हैं तो पर्दे के पीछे वो पादरी के सामने एतराफ कर लेते हैं। उसने पर्दे के पीछे पादरी से कहा, फादर, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मेरा एक शादीशुदा औरत से ताल्लुक है। एडम सांस रोके सुन रहा था और वो उस पर नजर जमाए मुस्कुराहट से कहे जा रहा था। पादरी ने फौरन पूछा, क्या मिसेस जूलिया से? उसने कहा, नहीं। पादरी बोला, क्या मिसेस मार्था से? उसने कहा, नहीं। तो पादरी ने कहा, फिर यकीनन मिसेस बाबरा होंगी। सुराग रसा वहाँ से निकल आया। बाहर किसी ने उससे पूछा कि तुम क्या करते फिर रहे हो? तो उसने कहा, जब मैं चर्च में गया था तो खाली हाथ था। अब जबकि मैं निकला हूँ तो मेरे पास 3 मुश्तबा औरतों के नाम है। आखिर वो हल्का सा मुस्कुराया। एडम का मुंह खुल गया। चंद लम्हे लगे उसे बात समझ में। आप जानते थे कि वो अशर साहब के साथ मिले हुए हैं, इसलिए आप उनसे मिलने गए ताकि ये जान सके अशर साहब असल में क्या चाहते हैं, उनकी एंड गेम क्या है। फातिह ने जवाब नहीं दिया, मगर इसी मुस्कुराहट के साथ उसे देखता रहा। तुम्हारी तसल्ली हो गई? मैं समझा कि आप वो कह नहीं सका कि आप बेवकूफ़ हैं। रोज सा रोज था जिसके वजूद पे तारी हो रहा था। टांगे एक दफ़ा फिर से लरजने लगी थी। एडम,
वो आगे को झुका और हाथ बाहम फंसाए गर्दन उठाए उसे मुस्कुरा के देखा। अगर तुम्हें कभी किसी इंसान की काबिलियत को नापना हो तो पैमाना इस जंग को न बनाना जो उसने जीती या हारी है, बल्कि हमारे किरदार का तयन तो वो जंगें करती हैं जिनको लड़ने की हम हिम्मत करते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई इंसान किस मुकाम पे खड़ा है तो देखो कि उसके ख्वाब क्या हैं, वो कौन से मकासद और मंजिलें पा लेना चाहता है। इंसान वो होता है जो उसका सबसे बड़ा खौफ होता है, भले वो उसको ना भी हासिल कर सके। और अगर एक आदमी का ख्वाब इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे पहुंचना है और अपने मुल्क को एशिया का लीडर बनाना है और वो शख्स इस ख्वाब के लिए आखिरी हद तक कोशिश भी कर रहा है तो वो कुछ भी हो सकता है, मगर बेवकूफ़ नहीं। एडम ने शल से अंदाज़ सा हिला दिया। सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। सब कहते हैं कि आप हर एक पे एतबार कर लेते हैं, गलत नहीं कहते। आपने मुझसे टिश्यू क्यों नहीं लिया सर, जबकि आप जानते थे कि मैं इसी काम के लिए खड़ा था। एडम, तुम्हें वाकई लगता है कि फातिह बिन रामजिल किसी पे डिपेंड कर सकते हैं? हैरत में मुस्कुराहट के साथ कि उसने फिर से ऐनक लगाई और डायरी की तरफ मुतवज्जा हो गया। एडम खामोशी से बाहर निकल गया। वो आज पहली दफ़ा फातिह रामजिल से मिला था और उसका दिल एक अजीब खुशगवार हैरत से भर गया था, मगर फिर दिल पे एक बोझ सा गिरा। 11 दिन में ये ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी और वो कभी से यूँ नहीं मिल सकेगा। सिर्फ 11 दिन थे इसके पास मुल्क के सबसे बड़े विजनरी आलिम से कुछ सीखने के लिए। जाहिर है अभी वो ये थोड़ा ही जानता था कि 11 दिन कभी ना ख़त्म होने वाले दिन बनने जा रहे थे। अगली दोपहर शहर पे फैली तो सारा केल सोने के पानी में नहा गया और गुज़िश्ता रोज़ की बारिश की नमी कुछ देर के लिए कम हो गई। ऐसे में इस कॉलोनी के दोनों अतराफ में ऊंचे ऊंचे महल नुमा घरों की 2 कतारें बनी थीं। तमाम घरों के लॉन कुशादा थे और 4 दीवारी 3-4 फीट की छोटी सी थी। इनमें एक फातिह रामजिल की रहायशगाह भी थी जो चमकते सूरज तले दहक रही थी। फासले पे एक दरख्त की ओट में एक कार रुकी खड़ी थी और उसमें वो दोनों बैठी नजर आ रही थी। तालिया ने सियाह लिबास और सियाह टोपी पहन रखी थी और नजरें झुकाए ग्लव्स हाथों में चढ़ा रही थी। दातिन ने स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था और भद्दा सा काला चश्मा लगाए हुए थी। चेहरा मोड़ के ताली की कार्रवाई देखती रही, फिर रह न सकी। दिन दिहाड़ी चोरी की ज्यादा खतरनाक नहीं होगी तालिया? तालिया ने सियाह आंखें उठा के उसे घूरा। तुम वाकई बूढ़ी हो रही हो, इसलिए भूल जाती है कि दुनिया भर में 70% से ज्यादा चोरियां दिन के वक्त होती हैं। हम चोर सिक्योरिटी अलार्म में कुत्तों से इतना नहीं डरते जितना घर वालों से डरते हैं, और दोपहर में सब अमूमन काम भी होते हैं। खैर, सब तैयारी मुकम्मल है ना? उसने दूसरा ग्लव्स पहनते हुए किसी लीडर की तरह पूछा। ताचन ने ठंडी सांस भरी। हाँ, कल मैंने उनका घर केस कर लिया था। दोपहर के वक्त यहाँ सिर्फ 3 गार्ड्स होते हैं और 1 मुलाजिम। कुछ अर्सा पहले मिसेज असरा ने बहुत से मुलाजिम फारिग किए थे, बाकी गार्ड्स फादर साहब या असर साहिबा के साथ जाते हैं। मैंने ये भी देख लिया था कि उनका होम अलार्म सिस्टम कौन सा है। काश तुम हैकर होती और हम इतने तरद्दुद करने के बजाय सिक्योरिटी सिस्टम को सिर्फ हैक कर लिया करते। अब के दातिन ने उसे घूरा था। अवल तो ये कि हैकर बनना आसान नहीं होता, दूसरी कि इसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि एक बच्चा भी किसी का होम अलार्म बंद कर सकता है। चंद फीट के फासले से भी मैं इस आम से जैमर का एक बटन दबाऊंगी और उनका अलार्म जैम हो जाएगा। और सिक्योरिटी कैमरे वो वाईफाई पे हैं, मैं दूसरे जैमर से वाईफाई भी जैम कर दूंगी। फिर मैं दरवाजे पे जाके फातिह रामजिल की नाराज वोटर बन के धरना दूंगी। 4 मुलाजिम इकट्ठे हो जाएंगे और मुझे भगाने की कोशिश करेंगे। तुम कोने से दीवार फैलांग के अंदर चली जाना। तो उन घरों को देखकर ठंडी आ भर के बोली, क्या तुम्हें इन अमीर लोगों पे तरस नहीं आता तालिया, जो ये तक नहीं जानते कि उनकी सिक्योरिटी कंपनीज अभी तक 90 की दहाई वाले अलार्म टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं। ये इन बेचारों के साथ कितना बड़ा धोखा है। मेरा ख्याल है हमें यहाँ हर एक घर में चोरी करनी चाहिए ताकि उनके अलार्म की असलियत खोल के उनके सामने रखी जाए। ये इन पे कितना बड़ा एहसान होगा ना। मगर तालिया नहीं हंसी, उसका ज़हन बटा हुआ था। टोपी से बाल अच्छी तरह ढके और ग्लासेस आंखों पे चढ़ाए। फिर कलाई पे बंदी घड़ी देखी। एक लम्हा प्लान के मुताबिक इस्तेमाल करना था। मैं तैयार हूँ, सिग्नल जैम करो। लियाना साहब का इस कॉलोनी पे पहला एहसान, मगर ये यकीनन ये आखिरी नहीं होगा। लियाना उर्फ दातन ने बहुत फयाजी से बटन दबा दिया। तालिया की नजरें घर के गेट पर जमी थी, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड सियाह सूट और टाई में मलबूस खड़ा फोन पे बात कर रहा था। अलार्म, वाईफाई सब हो गया जैम, अब तुम जा सकती है और मैं भी। दातन दरवाजा खोलने लगी, मगर तालिया ने उसके घुटने पे हाथ रखा। 1 मिनट। उसकी चौकनी नजरें गार्ड पे जमी थी। वो कॉल के दौरान एकदम फोन कान से हटाकर देखने लगा, फिर जल्दी से उसे कान से लगा, शायद अलविदाई कलमात कहकर फोन बंद किया।
फिर स्क्रीन पर उंगली फेरता अंदर को भागा। क्या हुआ, कुछ गलत है दातिन? वो सांस रोके बिना पलके झपके देख रही थी। जैसे ही बंदा गायब हुआ घर का अलार्म बजने लगा। अगले ही लम्हे वो गार्ड दूसरे 2 गार्ड्स के हमरा बाहर आता दिखाई दिया। सब इधर उधर देख रहे थे, पिस्तौल निकाल लिए थे। निकलो यहाँ से जल्दी। इसका फिक्र मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि दातिन ने गाड़ी चलाई और मोड़ काट लिया। वो कॉलोनी के सिरे पे थे, इसलिए गार्ड्स की निगाहें नहीं पड़ी थी। अलार्म कैसे बजा? दातिन हक्का बक्का थी। ये पहली दफा हुआ था। इनके अलार्म सिस्टम में जामर से बचाव के लिए कोई जैमिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई सिग्नल जैम करने की कोशिश करेगा तो कार्ड्स को टेक्स्ट मैसेज पे अलर्ट आ जाएगा और फिर वो खुद अपने हाथ से अलार्म ऑन करके चोर की तलाश में दौड़ते हैं। मालूम होता है कि इन अमीर लोगों को तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं है लियाना साबरी। हाँ, दादा ने मुंह फुला लिया। वो शदीद खफा नजर आ रही थी। हमने उनको अंडर एस्टिमेट किया, अब हम क्या करें? डोंट वरी, ताले के पास प्लान सी है। वो ग्लव्स उतारते हुए आराम से बोली थी। ड्राइव करते दातिन ने घूर के उसे देखा। मगर हम इनका अलार्म नहीं बंद कर सकते, यानी हम उनके घर तब तक नहीं जा सकते जब तक वो खुद हमें इनवाइट ना करें। बिल्कुल, और अब वो हमें खुद इनवाइट करेंगे। उसने टोपी उतारी और बैग में फेंकी। सिया बाल कस के जोड़ में बंधे नजर आ रहे थे और धुला धुलाया निकला हुआ चेहरा गहरी सोच में डूबा हुआ लगता था। मगर कैसे? जानती हो एक बेहतरीन कॉर्न गेम कैसे खेली जाती है? कॉर्न का लफ्ज़ कॉन्फिडेंस से होता है। हमें देखना होता है कि हमारे शिकार को किस चीज़ में एतमाद है, अंधा एतमाद। मगर कुछ कॉर्न गेम्स में हम ये देखते हैं कि हमारा शिकार किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता है। और तुम्हें पता है लाहौर और मलेशिया के लोग सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं? पुलिस से नहीं दातिन, डेंगी से। राइट, दातिन ने गहरी सांस लेकर सर हिलाया था। The dengue scab.